وہ والی آیت تھی کہ بشر عباد الذین یستمعون القول، اور میں نے یسمعون اور یستمعون کا فرق واضح کرنے کی کوشش کی تھی. یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ سننے کا عمل دو طرح کا ہوتا ہے. انگریزی زبان میں اس کے لیے دو الگ الگ لفظ موجود ہیں، ایک ہے ہیئرنگ، ایک ہے لسننگ. سننا صرف سن لینا، ایک آواز ہمارے کان میں جا رہی ہے جس کو ہیئرنگ کہیں گے، اور لسننگ جب ہم غور سے کسی بات کو سنتے ہیں، ایکٹیو ہیئرنگ. وہ سننا جس میں سننے والا یہ چاہتا ہے کہ بولنے والے کی بات اس کے ذہن تک پہنچے. یہ گفتگو پچھلی بار ہوئی، اسی سے مربوط ہے آج کی گفتگو. بات کی سمجھ کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا جو روٹ ہے، اس لفظ کا جو روٹ لفظ ہے جس کو مصدر کہتے ہیں، وہ ہے فقیہ. بے قاف چھوٹی. جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سب ماشاءاللہ اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے میدان میں علم کے بہت اعلیٰ منازل تک پہنچے ہوئے ہیں. اس لیے میرے خیال میں میری بات ضائع نہیں جائے گی، لیکن میں تھوڑی سی بات واضح کر دوں. دیکھیے عربی زبان میں عام طور کے اوپر زیادہ تر 90% الفاظ جس لفظ سے نکلے ہیں وہ ایک ثلاثی ہوتا ہے، ٹرپلیٹ ہوتا ہے. 3 لفظوں سے، 3 حرفوں سے مل کے بنا ہوتا ہے. اور عام طور پر اس کی موٹی موٹی پہلی مثال جو دی جاتی ہے وہ ہے فعلا، یعنی کیا اسے ایک شخص نے. اور اس کی تصریف سے، اس کی تبدیلی سے، اس کے ٹرانسفارمیشن سے، اسی لیے عربی میں اس علم کو علم صرف کہتے ہیں. صرف کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، ایکسچینج کرنا، چینج کرنا. اسی لیے اپنے یہاں جو یہ سکے بدلنے والے لوگ ہوا کرتے تھے ان کا نام صراف ہوا کرتا تھا. اس پورے پیشے کا نام ہوا کرتا تھا صراف، جو بدلا کرتے تھے چیزوں کو. تو ان الفاظ کے، ان حروف کے تبدیلی کا، ان کے زیر زبر کو بدل کے یا ان کے ساتھ دوسرے حروف لگا کر کے، اسی سے سارے مفہوم نکلتے ہیں. ثلاثی سے کچھ اور بھی ہوتے ہیں، رباعی بھی ہوتے ہیں، ثلاثی مزید بھی ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن عام طور پر ثلاثی ہوتے ہیں. اور یہ لفظ جو ہے یہ بھی ثلاثی ہے. فقیہ، بے قاف اور یہ کہا جاتا ہے کہ فقیہ عنہ الکلام، یعنی کوئی شخص کسی شخص کی بات سمجھ گیا. فقیہ عنہ الکلام یعنی کوئی شخص کسی بات کی، کسی شخص کی دوسرے شخص کی بات سمجھ گیا. صلوات علی محمد علیہ. یہ دور جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دنیا میں جتنا بھی ہم اس کا شکر ادا کریں کم ہے کہ یہ دور وہ دور ہے جس کو انفارمیشن ایج کہا جاتا ہے، اطلاعات کا دور. یہ دور وہ دور ہے جسے کمیونیکیشن کا دور کہا جاتا ہے، ترسیل معنی کا دور. ترسیل معنی اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع آج کے جدید انسان کے لیے بن چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ترسیل معنی ہوتا کیا ہے اور اس میں کیا کیا عوامل ہوتے ہیں. جب بھی معنی یا مفہوم کی ترسیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں 4 اس کے کردار ہوتے ہیں، 4 عوامل ہوتے ہیں، 4 پلیئر ہوتے ہیں جو اس ڈرامہ میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں ترسیل کے. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ ترسیل ہو رہی ہے، امید کرتا ہوں کہ ترسیل ہو رہی ہے. تو یہ جو ترسیل ہو رہی ہے اس میں 4 کردار حصہ لے رہے ہوتے ہیں اس عمل میں.
पहला होता है मुतकल्लिम, वो जो बोल रहा होता है। मौजूदा जमाने के कम्युनिकेशन साइंस के एक्सपर्ट्स उसको कम्युनिकेटर बोलते हैं या ट्रांसमीटर बोलते हैं। कम्युनिकेटर या ट्रांसमीटर, मुतकल्लिम जो बोल रहा, जो उसके जहन में जो भी ख्यालात या तसव्वुरात बन रहे हैं उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा होता है खुद कलाम यानी मैसेज, यानी जो बात कही जा रही। तीसरा होता है मुखातब, वो शख्स या वो लोग कि जिन तक बोलने वाला अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये पैगाम पहुंचाना क्या होता है कि बोलने वाले के जहन में जो तस्वीर बन रही है, चाहता है कि उस तस्वीर का अक्स हूबहू जिनके जहन में वो बनाना चाहता है, जिन तक पैगाम पहुंचाना चाहता है, ये अक्स यहाँ जो तस्वीर बनी है वो तस्वीर वैसे ही मुंतकिल हो जाए किसी और जहन तक, उस जहन में वही तस्वीर बन जाए। रिसीवर कहते हैं आज के कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट। और फिर तीन चीजें हो गई, चौथी चीज जो होती है वो होती है मीडियम या वसीला। मिसाल के तौर पर मेरी आवाज आपके कानों तक मैं बोल रहा हूं, मैं मुतकल्लिम हूं, मेरे जहन में एक तसव्वुर है, मैं कुछ सोच के आया हूं कि मैं ये बोलूंगा, अच्छा हो या अच्छा ना हो, पसंद आए या ना पसंद आए वो एक अलग बात है। मेरे जहन में एक तसव्वुर है, मैं उस तसव्वुर को आपके अज़हाने आलिया तक मुंतकिल करने की उम्मीद रखता हूं कम से कम कि मैं बोलूंगा, आप तक पहुंचेगी बात। इस अमल के लिए मैं बोल रहा हूं और आपके कानों तक आवाज जा रही है। ये आवाज तब जा रही है जब बीच में एक वसीला है हवा का। मेरी गुफ्तगू हवा में एक इर्तियाज पैदा कर रही है, वो इर्तियाज की लहरें आपके कानों में टकरा रही हैं, आपके कान के पर्दे वैसे ही मुर्तइश हो रहे हैं और उस इर्तियाज को आपका जहन अपनी पुरानी याददाश्त से, अपने स्टोर इंफॉर्मेशन से मिला रहा है कि इस तरह के इर्तियाज का क्या मफहूम हम जानते हैं और उससे वो एक तस्वीर बनाता चला जा रहा है, एक खाका बनाता चला जा रहा है। अब ये खाका जितना ज्यादा मुंतबिक होगा, जितना ज्यादा वैसा ही बनेगा कि जैसा मैं सोच रहा हूं, उतने ही ज्यादा तरतीब का अमल मुकम्मल होगा। सलवात भेजें। ये सोचना और तसव्वुर करना और उस तसव्वुर को किसी दूसरे के जहन में मुंतकिल करना ही वो एक सिफत है जो सिफत हम सबको इंसान बनाती है हैवान से अलग, वरना हैवान में और हमें कोई खास फर्क है नहीं। यही एक फर्क है। एक फर्क और है, वो ये कि इंसान में अल्लाह ने खुद तो खल्लाक है, लेकिन जिद्दत की, इख्तिरा की एक सिफत पैदा फरमाई है जो सिर्फ इंसान के जहन में, तनव्वुर की एक सिफत पैदा फरमाई। हम पहले जबान में बोल दो, जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, जिसको आज की जबान में क्रिएटिविटी कहते हैं। ये क्रिएटिविटी क्या चीज होती है जनाब? क्या हम फॉर एग्जाम्पल मसलन क्या हम बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं? क्या हम इंसान बहुत अच्छी इमारतें बनाते हैं? किस वजह से हम इस जोन में मुब्तला हैं? जबकि हम जानते हैं कि शहद की मक्खी एक छोटा सा हकीर सा कीड़ा, उसके अंदर अल्लाह ने ये इल्म और ये सिफत अता की है कि वो जो अपना छत्ता बनाती है तो उसके छत्ते के एक एक खाने का एंगल बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल एक खास पैटर्न पर होता है। हम अपने तमाम तर आलात के साथ वैसा ही डुप्लीकेट करना हमारे लिए मुश्किल है कि हम बना लें। शहद की मक्खी बनाती है, बया बनाती है हम बहुत खूबसूरत अपने घर, दूसरे जानवर हैं जो बनाते हैं अपने घर, तो हमें क्या खास हो रहा है? वो खास बात है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की सिफत हमें तनव्वुर पैदा करती है। आप जरा गौर से सुने इस बात को, मैं अपने कलाम को बढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मुमकिन है कि आप लोग उलझ रहे हो अभी फिलहाल गुफ्तगू में।
नेशनल कलाम पर आ रहा हूं, इसकी तमीज है। क्रिएटिविटी में हमें, इंसान में, एक आर्किटेक्ट में, उसने जिसने छोटे अम्बाड़े को डिजाइन किया था, और एक शहद की मक्खी में कि जिसने बहुत खूबसूरत छत्ते बनाए हैं, बहुत उम्दा। फर्क क्या है बुनियादी तौर पर? फर्क यह है कि आज से 1 मिलियन 1 अरब साल पहले भी शहद की मक्खी जैसे छत्ते बनाती थी, आज भी वैसे ही बनाती है, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई। कोई तब्दीली का कभी देखा आपने? कभी? चलिए 1 मिलियन बरस का तो शायद वो साइंटिस्ट जानते होंगे, हम लोग अपने जिंदगी में देख लें, कभी हमने सुना अपने बाप दादा से कि पहले के शहद की मक्खियों के छत्ते इतने अच्छे नहीं होते थे, वैसे छोटे मोटे होते थे, अब वो सीखने में बनाना चाह रहा था। किसी ने सुना आपने कभी? कहीं पढ़ा? नहीं। नहीं। इसलिए मामूली से मामूली इंसानी आर्किटेक्ट में और शहद की मक्खी में बुनियादी फर्क यह है कि इंसान जब आर्किटेक्ट है और वो जब एक चीज बनाना चाहता है तो जो चीज पहले से नहीं मौजूद थी उस चीज का पहले तस्वुर बनाता है अपने जहन में। कोई भी चीज, कोई भी इंसानी कारनामा जो बन के आपके सामने आया है, वो बनने से पहले, मारदे वजूद में आने से पहले जिसने उसको बनाया है उसके जहन में उसका नक्श बना था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। और ये जो नक्श बना था, इस नक्श को उसने मुंतकिल किया दूसरों के जहनों में मुख्तलिफ वसीलों से। फिर बहुत सारे लोगों के जहनों में कुछ वैसे ही नक्श बने, फिर उन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों ने उस पुराने बने हुए नक्श में और तब्दीलियां की। ये तो यूं ही बदल सकता है, ये तो यूं ही बदल सकता है, और इंसानियत का कारवान आगे बढ़ता, मादी तरक्की में कम से कम आप देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है। वैसे ही फलसफा है, वैसे ही सब कुछ। सवाल ये है कि कलाम बात को एक इंसान के या एक मुतकल्लिम के, इंसान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि खुद रब्बे कलाम का कलाम, खुद खालिक़े कलाम का कलाम, वो उसका कलाम है। मंशा, अब सोचने की बात है कि मंशा उसकी है जो सब कुछ करने पर कादिर है। उसने कलाम और पैगाम दिया है ताकि लोगों के, इंसानों के अज़हान तक पहुंच जाए। क्या पहुंच जाता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इसी सवाल के ऊपर आज की गुफ्तगू। सबसे पहले ये कि कलाम पाक इस सिलसिले में क्या कहता है। मैंने कोशिश की, इसलिए मैंने कहा था काश के हम लोगों के यहाँ ये दस्तूर होता कि मजलिसों में भी कागज और कलम लेकर बैठते। काश के फायदा ये शायद होता है कि मेरी तरह के कुछ सरफिरे अगर कभी कभी कुछ चीजें ढूंढ के लाते और बोलते तो कुछ और लोग भी उसको नकल कर लेते, लिख लेते, लिख लेने के बाद उसको मजीद इजाफे होते, फिर मजीद इजाफे होते, तो ये होता रहता। शायद हम लोग इस बात को का दस्तूर बनाने की कोशिश करें कि मजलिसों में भी कलम और कागज हुआ करे हमारे साथ। वैसे हमारे कौम से कलम और कागज से बहुत पुरानी दुश्मनी है, छोड़िए। फतेहा के माथे से निकले हुए अल्फाज कुल कलाम पाक में 20 जगह इस्तेमाल है, 20 टाइम, सिर्फ और सिर्फ 20 जगह इस्तेमाल है। पहला है तफ़क़हून, मुज़ारे है, थोड़ा सा भारी नहीं, मतलब वो तो नहीं हो रहा है कि इससे उलझन हो रही है, वो इन चीजों के डिटेल में ना जाऊं ऐसा तो नहीं है, मेरे ख्याल में जाना चाहिए। तफ़क़हून सब लोगों ने ग्रामर पढ़ी है, अंग्रेजी की, हिंदी की, उर्दू की, इसे सिर्फ उससे मिला लीजिए। अरबी में टेंस 2 ही होते हैं, 3 नहीं होते। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस हुआ करता है ना सब में, अरबी में नहीं होते, 2 ही होते हैं। माजी होता है पास्ट जो गुजर गया, और उसके बाद एक ही तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुज़ारे। और मुज़ारे में कलाम से सियाक़ और सवाब से समझ में आता है कि ये